begin. Good morning, everyone, and thank you for taking the time to join us today. I'm Robert, Senior Marketing Lead at JBS, and I'll be moderating this session today. So, today's workshop, Mastering Intelligent Automation, is really about one thing: how we move from manual work to intelligent automated workflows that actually drive results. So over this next session, we'll walk you through the fundamentals. You'll be able to see a live demo, and more importantly, understand how this translates into real business impact. Next slide. So before we begin, let me quickly introduce our speakers. First, we have Uzair Bilal, who heads our Microsoft practice. Uzair brings deep experience in designing and delivering enterprise-scale Microsoft solutions in a way that's both strategic and practical. Joining him, we've got Arsim Ahmed, Microsoft certified trainer and a Power Platform consultant, who's got experience in building automation and AI-driven solutions. Next slide. Just to quickly set the context on who we are, JBS is a one-stop technology partner with expertise across infrastructure, managed services, and AI. With over 40 years of experience and a strong ecosystem of global partnerships, we help organizations solve problems and scale smarter. Also, as part of our AI focus, we've recently launched our computer vision capabilities named OmniVision, and we'll be hosting a dedicated workshop at our head office on the 21st of April. If you're interested in that, make sure to visit our LinkedIn page and sign up. With that, I'll hand it over to Uzair to get us started. Next slide. Assalamualaikum everyone. Thank you very much for joining today. अच्छा आज के सेशन में हम लोग मेजर फोकस हम लोगों का है हाउ ऑटोमेशन saves your time, improve your productivity, reduce human errors. ऑटोमेशन से आप लोग किन चीज़ों से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस की ऑप्टिमाइजेशन को फोकस कर सकते हैं. मोस्टली इन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. लाइक यू हैव अप्रूवल्स के प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, फॉलोअप्स होते हैं, डाटा एंट्रीज, मैनुअल आपके अपडेट्स होती है. अब दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी इजीली ऑटोमेटेड क्योंकि इन सारे प्रोसेसेस के बैक एंड पे आपका कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होता है. और इफ देयर इज एन अप्रूवल, देयर इज अ कंप्लीट हायरार्की, फर्स्ट कम टू दिस, सेकंड कम टू दिस एंड थर्ड फाइनल अप्रूवल टू दिस. सो इसके भी बैक एंड पे रूल आपको फॉलो हो रहा है. इसी तरह अगर आपको फॉलोअप्स होते हैं उसमें आपको टाइमलाइन को लॉजिक कोई चीज उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं. इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट आपके कोई ना कोई प्रोसेसेस हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो रिपीटेटिव टास्क जो आपको रूटीन में करने पड़ते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, बट दे आर रूल बेस्ड. यू कैन क्लियरली डिफाइन इट्स लॉजिक टू अ मशीन. और वंस मशीन को आपने वो चीज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर दी, दैट इज वेयर it takes the whole burden from you. और आपकी वो जितना टाइम आपका historical में utilize हो रहा था, now your whole time is available and you can actually spend your mind and your efforts to where a human intelligence is required. So moving forward, अभी हम लोग इसके ऊपर जो है complete एक demonstration भी आपको जो है करके देंगे. और इसमें कितने इजी हैं ये आई डू अंडरस्टैंड. राइट नाउ मार्केट में एआई की जितनी स्पीड से जो है वो इंटीग्रेशन चल रही है, देयर इज अ फियर फैक्टर एज वेल कि यार आर वी लैकिंग बिहाइंड, क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते. थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड इजी टू डू, जो कि लग बहुत कॉम्प्लेक्स रही है. सो हियर वी हैव अर्सम विद अस. He's a Power Automate and you can say co-pilot expert in JBS. और ये आपको एक complete जो है वो demonstration step by step how to build a flow,
आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से आपके इंटरनल प्रोसेस हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। उसी के अंदर अगर आपको कोई एआई का कंपोनेंट भी अगर ऐड करना तो दैट वी कैन डिस्कस एज वेल। अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं राइट नाउ दैट वुड बी माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट, जो कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु इज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 within their organizational environment, बेस लेवल लाइसेंस आपके यूजर के पास पावर ऑटोमेट का ऑलरेडी होता है। प्रीवियस नेम वाज माइक्रोसॉफ्ट फ्लो। अगर कुछ लोग पहले से इसको यूज करते आ रहे हैं या जानते हैं तो अब इसको पावर ऑटोमेट इसका जो है वो नाम मैंने चेंज किया, रीब्रांड करके लेके आए, बट नाउ इट कम बैक वेरी पावरफुल। मोर देन 300 एप्स की आपके पास इंटीग्रेशन है विद इन आपकी माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट। ऑल एप्लीकेशंस आपकी उनके कंट्रोल्स उनके एक्शंस आप यूज कर सकोगे। उसके अलावा आपके पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इफ यू हैव Oracle रनिंग एंड यू हैव एन एपीआई अवेलेबल, आपको वहां से डाटा फेच करना है, प्रोसेसिंग करनी है, पावर बीआई पे डाटा शेयर करना है। सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर मेड वेरी इजी, क्योंकि अगर आपको Oracle से कोई डाटा पुल करके उस पे पावर बीआई पे डैशबोर्डिंग के लिए यूज करना है या प्रोसेसिंग के लिए, द मेन थिंग इज कि कौन उस डाटा को आइडेंटिफाई करेगा। वो कोई रूल होगा, उस रूल की बेस पे डाटा आइडेंटिफाई होगा, ऑटोमेटिकली शेयर होगा, प्रोसेस होगा एंड इट विल बी सेंड टू द डैशबोर्ड विद लाइव अपडेट, रादर देन कि आपके डाटा इंजीनियर्स जो है वो डाटा कंपाइल वो फेच करें, उसको क्लेंस करें, उसके बाद उसको जो है वो लेके जाएं पावर बीआई में प्रॉपर उसकी डैशबोर्डिंग के लिए। तो इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस जो कि वन टाइम ऑटोमेशन से आप लोग अचीव कर सकते हैं। सो इट्स होल वर्ल्ड ओपन फॉर यू गाइस। अभी हम इसमें कुछ बेसिक लेवल डेमोस और उसमें किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। द एम इज कि आफ्टर दिस सेशन ऑल अटेंडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग लॉट ऑफ देयर टाइम, और उनको वो ऑटोमेट करके अपना वर्क आवर्स कैसे सेव कर सकते हैं, सो दैट इट improves their efficiency at the workplace. So, moving forward, I'll ask Asham to please introduce himself a bit and please take over. I'm very happy to have all of you here. Good number of audience. Thank you very much. Thank you so much, Udar bhai. Hi, this is Arsam. So, our today training agenda is about what is Power Automate and how you can automate your processes. For that, we identify one use case for you guys, so you guys can understand how the process will work and how you can create automate your manual processes. For that, we have a short introduction how what is the Power Automate. But that in Power Automate, there are three type of trigger. First one is data change to trigger your flow. For example, आपका ऑटोमेट तब स्टार्ट होगा जब कोई इवेंट हैपन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ईमेल आती है, आपके पास कोई फॉर्म पे रिस्पॉन्स आता है, आप चाहते हैं जब भी वो कोई इवेंट हो तो उसके अगेंस्ट में मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो, तो उसके लिए पावर ऑटोमेट में ट्रिगर अवेलेबल है। सेकंड वन इज बटन। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट के मेरा ऑटोमेट या मेरा प्रोसेस तब स्टार्ट हो जब मैं उसको मैन्युअली या किसी बटन के थ्रू उसको स्टार्ट करूं, तो उसके लिए पावर ऑटोमेट में इंस्टेंट ट्रिगर अवेलेबल है। और थर्ड वन इज स्केड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट के मैंने सुबह 7 बजे कोई मैसेज सेंड करना है या मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, या मैं चाहता हूँ मेरा कोई प्रोसेस है जो एट स्पेसिफिक टाइम रन हो, तो उसके लिए हमारे पास स्केड्यूल ट्रिगर मौजूद है। अच्छा, पावर ऑटोमेट में हमारे पास 300 प्लस प्री बिल्ड कनेक्टर्स होते हैं जो कि एक ब्रिज बनते हैं आपके प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और also if there is no pre-built connector available, so you can also create a custom connector in it. And third is actions. So action is a step data flow perform. For example, you want to create an item after the flow trigger, or update your item, or retrieve some data. So you can perform that type of tasks in Power Automate. So let's move towards the next slide. So
start our first automation, which task is saving Outlook email attachment to OneDrive automatically. इसको इजी करने के लिए हम एक यूज केस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइनेंस पर्सन हूँ और मेरे पास दिन में 50 इनवॉइसेस आती हैं जो कि अटैचमेंट होती हैं, और ऑब्वियस है मेरे पास सिर्फ एक टास्क नहीं होगा दिन का, मेरे पास मल्टीपल मेरे और इम्पोर्टेंट टास्क होंगे जो मुझे हैंडल करना है, और उन ईमेल्स के अंदर हो सकता है मेरी इनवॉइसेस मिस हो जाए जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है. तो उस चीज को ईज करने के लिए मैं अपनी जितनी भी इनवॉइसेस मेरे पास डेली मेरे ईमेल बॉक्स पे लैंड कर रही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे एक वन ड्राइव में आ जाए ताकि मैं इजीली आफ्टर द और एट द डे एंड मैं उसको चेक करूँ और चेक करने के बाद मैं उनको प्रोसेस कर दूँ. तो मूव करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो यू विल गाइस सी. तो मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके. सो पहले हम एक टॉपिक को कवर करेंगे एंड देन आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, और इन बिटवीन आपको क्वेश्चन हो तो आप अपने चैट में पोस्ट कर दीजिएगा ताकि आफ्टर द कंप्लीशन मैं उसको चेक कर सकूं एंड आई विल आंसर इट. तो पावर ऑटोमेट पे आने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये लिंक है, ये मैं चैट में पोस्ट भी कर सकता हूँ. लोगों के पास भी ऑफिस 365 के लाइसेंस है तो आप लोग भी इसको ओपन करके देख सकते हैं. आफ्टर दैट हम जब इस पोर्टल पे आते हैं तो हमारे पास लेफ्ट नेविगेशन पे हमारे पास होम आ जाता है, जहाँ पे आपके पास को-पायलट से भी आप एक अपना ऑटोमेट क्रिएट कर सकते हैं, जो आप अपना प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट. देन आप मैनुअली क्रिएट पे जाके अपने ऑटोमेट को या अपने प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं. थर्ड वन इज वी हैव आल्सो टेम्पलेट्स. तो अगर आपको बना बनाया कुछ टेम्पलेट यूज करना है तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. So there are multiple templates जो कि प्री-बिल्ट अवेलेबल है. आपने जस्ट अपनी जो चीज को ऑटोमेट करना है आपने सिर्फ सर्च करना है, वो आपको इन पे मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम चाह रहे हैं कि आउटलुक अटैचमेंट्स. तो यहाँ पे 2 टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो कि है कॉपी फाइल बिटवीन वन ड्राइव फॉर बिजनेस एंड शेयरपॉइंट, मर्ज ईमेल अटैचमेंट टू पीडीएफ एंड आर्काइव टू वन ड्राइव फॉर बिजनेस. सो इसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं जो कि आपकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, और इफ अगर नहीं करते और आपने स्क्रैच से डिजाइन करना है तो आपने जाना है क्रिएट के ऊपर, और क्रिएट के ऊपर आपके पास ये सारे ट्रिगर्स आ गए जिनकी मैं बात कर रहा था. तो ये अच्छा सर, यहाँ पे जस्ट एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा. टेम्पलेट्स में यू हैव थाउजेंड्स ऑफ यूज केसेस जो रूटीन में किसी के भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं. अब most of the cases you have already your requirement is sparking with something, मतलब जो टेम्पलेट में ऑलरेडी मौजूद है. इफ यू सी के यार टेम्पलेट में एग्जैक्टली वो चीजें नहीं है, ये टेम्पलेट्स फिक्स नहीं है. दीज ऑल टेम्पलेट्स आर कस्टमाइज्ड. इफ यू सी के यार मुझे फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट पे डाटा नहीं चाहिए, मुझे जो है टीम्स पे डाटा नहीं चाहिए, आई वांट इट ऑन द एक्सेल, तो all those components you can use it. Even if the 10-20% is something you want to change, it's completely customizable. वो आपका 80% का time reduce कर देगा. You can just select the template and start configuring it and connecting with your processes. Thank you so much. Okay. तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ट्रिगर्स की, ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, जो कि कोई भी डेटा चेंज होने पे या कोई इवेंट ट्रिगर होने पे स्टार्ट हो जाता है.
सेकंड इज इंस्टेंट क्लाउड फ्लो कि आप मैन्युअली बटन पे क्लिक करें और वो शुरू हो जाए. स्केड्यूल वन इज आपने कोई टाइम फिक्स कर दिया और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो. तो हमारे यूज केस को कवर करने के लिए हमें नीड है ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो की. तो मैंने जब उसके ऊपर क्लिक किया वो मुझसे पूछा मेरे फ्लो का नाम और उसका ट्रिगर. तो फॉर एग्जांपल हमारा है व्हेन एन ईमेल अराइव, व्हिच मीन जब भी मेरे पास कोई ईमेल आए तो मेरा फ्लो ट्रिगर हो जाए. मैंने उसको चूज कर लिया और उसको फर्स्ट ऑटोमेशन मुझे जस्ट सिंपली क्रिएट करना, क्लिक करना क्रिएट पे और ये मेरा प्रोसेस लोड हो जाएगा. तो जब भी आप ऑटोमेट को क्रिएट करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी. आपके पास एडवांस पैरामीटर्स आ जाएंगे जिसके अंदर आपने डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा ईमेल में थ्रू कौन होगा या सीसी होगा तब ये चलना चाहिए. मतलब मेरा जो ट्रिगर है वो कब ट्रिगर होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. मतलब उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए तो वो चीज़ें आप यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे फ्रॉम में कोई स्पेसिफिक ईमेल हो जिसकी बेस पे मेरा फ्लो ट्रिगर हो तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ मेरे प्रोसेस के अंदर अटैचमेंट इंक्लूड होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ. उस पैरामीटर्स को सब्जेक्ट को फिल्टर कर सकता हूँ. उसकी इम्पोर्टेंस है मतलब जो मेरी ईमेल अराइव हो रही है उसकी प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर ट्रिगर हो डिफाइन कर सकता हूँ. ओनली विद अटैचमेंट जिसमें सिर्फ अटैचमेंट हो वही चले वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ. या कोई स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर मेरे पास ईमेल अराइव होती है तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें को ऐड कर सकता हूँ. अभी हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं एंड देन और सेकंड थिंग इज टू डिफाइन एन एक्शन. तो हमारा एक्शन ये था कि हमने अपने वन ड्राइव के अंदर इनवॉइसेस को क्रिएट करना. जब भी मेरे पास कोई ईमेल आती है उसके लिए हमारे पास है क्रिएट फाइल. मैंने जब भी क्रिएट फाइल सर्च किया तो मेरे पास मल्टीपल कनेक्टर्स आ गए जो भी पावर ऑटोमेट के अंदर अवेलेबल है. जैसे कि वन ड्राइव फॉर बिजनेस में आ गया. हमारे पास शेयर पॉइंट के अंदर भी मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ. डेटावर्स है और भी मल्टीपल चीज़ें जिनके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ. तो बेस्ड ऑन माई सर्च उसने मुझे कनेक्टर्स ला के दे दिए जो भी प्री बिल्ट अवेलेबल है. हमने यूज करना है क्रिएट फाइल. मुझे यहाँ पे फोल्डर पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा. जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको मैं ऐड करूँगा और मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो सिंपल है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है या कोई कोडिंग नहीं है. आपने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करनी है एंड देन यू आर गुड टू गो. फोल्डर पार्ट डिफाइन कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मेरा फोल्डर, मेरा फाइल का नेम मैं यहाँ से ले लेता हूँ. और यहाँ पे मैं फाइल का कंटेंट अटैचमेंट कंटेंट ये डिफाइन किया. मैंने सेव किया इसको और ये मेरा ऑटोमेट हो चुका है कि मेरे पास जब भी कोई ईमेल आएगी ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करेगा मेरे फ्लो को और मेरी जो इनवॉइसेस होंगी वो मेरे वन ड्राइव में आके सेव हो जाएंगी. अब इसको ट्रिगर करते हैं. इसको मैन्युअली ट्रिगर करते हैं और मैं अपने पास कोई ईमेल सेंड करता हूँ. से एक ईमेल सेंड कर देता हूँ. We've got a question from Faiza Hashmi. Faiza, just after this section, we'll be taking the questions. Just bear us with a minute or so, please.
ओके, सो मैंने अपने पास ईमेल सेंड की जिसके अंदर मैंने एक अटैचमेंट इंक्लूड करी थी जो कि एक इनवॉइस थी। तो जैसे ही मेरे ईमेल बॉक्स पे वो ईमेल लैंड होगी, ऑटोमेटिकली मेरा फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ये मेरी अटैचमेंट को मेरी वन ड्राइव के ऊपर जाके सेव कर देगा। ठीक, सम 1 or 2 मिनट। ट्रिगर हो गया, इसके ऊपर मैंने अपनी ईमेल सेंड करी थी, वो देख लेता। सक्सीडेड है, सही ईमेल है। ये मेरी अपनी पर्सनल ईमेल है जिससे मैंने ऑफिस की ईमेल पे इनवॉइस सेंड करी। जैसे मेरे कोई कस्टमर ने मुझे इनवॉइस सेंड करी तो उसकी ईमेल डिफरेंट हो सकती है। इसी तरीके से मैंने अपने पर्सनल ईमेल से अपने ऑफिस ईमेल के ऊपर इनवॉइस सेंड करी और वो आ गई, और ये मेरी इनवॉइस की अटैचमेंट थी जो कि मेरी वन ड्राइव पे जाके सेव हो चुकी है। मैं एक दफा आपको दिखा भी देता हूँ अपनी वन ड्राइव पे ताकि आपको प्रोवाइड कर सकूं। जी, जो अटैचमेंट मेरी ईमेल पे आई थी वो मेरी वन ड्राइव में सेव हो गई। तो अब मैं एट डे एंड बैठ के इन इनवॉइसेस को देख के आराम से को प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे जो पेन पॉइंट थे उसको मैंने ऑटोमेट कर दिया। सही, ओके। अब अगर हम इसकी स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, इफ यू कैन सी द होल प्रोसेस, हाउ मच टाइम इट टुक, 0.2 seconds, then 1 second and then 0.6 second to create a file. अब मैनुअली अगर आप यही प्रोसेस करने जाएं अपने डेली रूटीन में, हाउ मच यूजुअली इट टेक्स? आई होप इट्स मोर देन अ मिनट और सो। So this is one very basic example. We were having questions raised hand during this demo. I think Faiza was the one. Can you please unmute and speak? Yes, Assalamualaikum. Can you all hear me? Loud and clear. Please go ahead. जी, so Arsam, I have this question कि ये जो आप जैसे आप कर रहे हैं create, I've got resumes coming in from LinkedIn और मैं चाह रही हूँ कि not just the file but उसका content भी अगर हम separate कर सकें, because you know we receive a lot of junk also in our CVs folder. So हम चाह रहे हैं कि not only by the position number या हमारी जो JR है उससे वो separate हो जाए, but उसका content भी अगर हम कर सकें. So is it possible via this workflow या उसके लिए we'll have to go to like जी, another channel or something? जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में हमने सिर्फ इनवॉइस जो थी वो सेव कराई है वन ड्राइव के ऊपर। अब इस इनवॉइस में क्या कंटेंट है उसको हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, उस पे क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, तो उसको हम अभी एडवांस लॉजिक पे जब बढ़ेंगे तो उसमें हम एआई बिल्डर के थ्रू हम ये चीज कवर कर सकते हैं। एआई बिल्डर क्या करता है? एआई बिल्डर आपके जो कंटेंट है उसको प्रोसेस करके बताता है कि उसके अंदर क्या मटेरियल अवेलेबल है और उसकी बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके केस में कि मुझे इस तरह की जो रिज्यूमे है वो चाहिए, आप वो डिफाइन कर सकते हैं। उसका कंटेंट ये वो तो ठीक है, वो मेरी फाइल जो है वो जाके सेव हो जाए या उसकी कोई अप्रूवल आप चाह रही हैं तो वो चीज़ आप कर सकती हैं। अभी मेरे केस में मैं इसको सिंपली जो मेरी इनवॉइस है उसमें क्या अमाउंट है, अमाउंट की बेस पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ। और मेरे यूज केस में अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, आपके यूज केस में जो भी चीज इम्पोर्टेंट हो आप उसकी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द कंटेंट के, यार इस कंटेंट रिज्यूमे में ये चीज कंटेन हो रही हो तो ये डिसीजन हो, ये चीज कंटेन हो रही हो तो ये डिसीजन हो, तो ये फॉर एल्स की कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट मतलब कोपायलट फ्री वर्जन ही यूज हो रहा है या इसके लिए पेड वर्जन हो रहा है? बिकॉज मेरे पास कोपायलट फ्री वर्जन है।
अच्छा फाइजा, इसके अंदर आपका को पायलट की तो रिक्वायरमेंट नहीं, आपके पास पावर ऑटोमेट है और इसके अंदर एआई बिल्डर एक लाइब्रेरी है जिसके मल्टीपल एक्शंस अवेलेबल होते हैं। उसमें आपके पास जो है ऑन स्क्रीन रीडर की ऑप्शन होती है, उस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की ओसीआर, जिसको यूज करते हुए आप फाइल का कंटेंट तो फेच कर सकते हो और उसको प्रोसेस भी कर सकते हो। जो हर्षद ने बात की कि उसमें आप जो है कीवर्ड्स अपने उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आइदर टू सेलेक्ट और रिजेक्ट। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन इसमें एआई बिल्डर आता है आपका पावर ऑटोमेट प्रीमियम के फीचर्स के साथ। तो प्रीमियम का फीचर आपके पास होगा, मतलब लाइसेंस अपग्रेड रिक्वायर्ड होगा। फ्री वर्जन में एआई के जो एक्शंस हैं दे आर वेरी लिमिटेड और उसमें आपको फॉर द टेस्टिंग पर्पस कुछ टाइम के लिए आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। आफ्टर दैट यू नीड टू बाय पावर ऑटोमेट प्रीमियम एंड एआई बिल्डर बोथ सेपरेट, क्योंकि एआई बिल्डर जो है दैट रन्स ऑन ओपन एआई और वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे उसके इनिशियल क्रेडिट्स आपको मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो। द यूज केस, यस, एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट्स वेरी वैलिड। डुएबल है कि नहीं, यस इट्स डुएबल। और लेकिन इसमें आपकी लाइसेंसिंग एडिशनल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, we have another question. How do you decide which version like V2, V3 to pick here? Okay, इसमें thumb rule है। V2 is basically the classic version या previous जो आपके set of controls या action blocks आपके available हैं। V3 are the latest one. उनकी एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस टाइम का बेहतर होता है, लेकिन ये क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन है कि V2 के सारे एक्शंस जो है V3 के ऊपर अवेलेबल हो, तो यूजुअली आपको कुछ एक्शंस जो है V3 के अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन V2 के कुछ एक्शंस आपको V3 में मिलते हैं। लेकिन ये कि जो V3 में नहीं होंगे वो आप V2 से जाके यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्शंस, तो उनको अपडेट करने में और अपग्रेड करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो V2 V3 जिसमें अवेलेबल है, प्रेफरेबली गो विद द V3 अगर उसमें अवेलेबल है। अगर नहीं है देन V2 आल्सो वर्क फाइन। Other question है, invoice can be multiple format, could be PDF, Excel and sometimes Yes. email. तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इधर PDF में हो, Excel में हो या हो सकता है PPT में। अच्छा, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, either we go with a file extension, secondly either we go with keyword in the email or the subject। बिल्कुल ऐसी है। तो इन दो के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो without going into the file and exploring and the content of the file। आप ये है कि उसकी फाइल एक्सटेंशन या उसका अगर कोई स्टैंडर्ड को नेम या उसके फाइल टाइटल में या फाइल नेम में कोई स्पेसिफिक कीवर्ड आता है आपका, जैसे अगर इनवॉइसेस आपकी जो है वो किसी बैंक से या किसी कस्टमर से आ रही हैं, तो आप उस बैंक का वो स्टैंडर्ड कोई उसका पैटर्न होगा, यू कैन आइडेंटिफाई द इनवॉइस बेस्ड ऑन दैट पैटर्न एज वेल। नेक्स्ट वी हैव Power Automate is fine if we can use AI Builder. Is this pay-as-you-go service or additional license we need to procure? जैसे इसके लिए हमारे पास AI Builder की separate licensing होती है based on the actions or the processes you perform। वो apart from Power Automate उसकी जो है वो billing होती है और that is consumption based। आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं अगेंस्ट सम अमाउंट और उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हो until that is complete। Any other questions guys before we move to our next flow? Okay, thank you। Hassan, please word। About the credit thing that we can get some credit free. Jasid, when you subscribe for AI Builder in Power Automate,
initially it gives you some credits. The first time I tested this product, those credits last for like 2.5 months. So it depends how much working you are getting done from these credits. लेकिन ये वेरी प्रोसेस टू प्रोसेस, आप 2 दिन में भी क्रेडिट्स कंज्यूम कर सकते हो, आप 2 महीने भी चला सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दैट एआई बिल्डर इज बीइंग यूटिलाइज्ड. और उसका पूरा चार्ट है कि एक डॉक्यूमेंट, हाँ, और उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आई विल शेयर द प्राइसिंग structure after you can say after the call or in the chat later. ओके, सो अभी हमने जो प्रोसेस डिफाइन किया वो सिंपल था कि मेरे पास एक ईमेल आ रही है जिसमें अटैचमेंट है और वो जाके मेरे सेव हो गई कॉन्टैक्ट में. अब मैं उस पर अपनी लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मेरे पास ईमेल आ रही है वो कोई स्पेसिफिक वेंडर की हो, मैं उस पर वेंडर डिफाइन करना चाह रहा हूँ. मेरे पास हो सकता है एक ईमेल के ऊपर मल्टीपल अटैचमेंट चाह रहा हूँ, तो वो लूप्स की तरह हैंडल कर लूँ. और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर सेकंड कंडीशन भी लगा लूँ कि यार मैंने उसको और किस तरह से प्रोसेस करना है, कि उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए या व्हाटएवर. तो वो चीज़ें भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं उसी ऑटोमेट को लेके उसको और ऑप्टिमाइज करते हैं. Let me share my slide. इसको दोबारा एडिट करेंगे हम. यहाँ तक हमारा प्रोसेस क्लियर था. अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इस पे एक कंडीशन हो कि स्पेसिफिक इस वेंडर की ईमेल आएगी तो मेरा जो इनवॉइस है वो जाके अटैचमेंट में सेव हो, अदरवाइज ना. या मैं उसमें ये भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि मैं मल्टीपल वेंडर्स के फोल्डर्स बना दूँ और उनके ऊपर मैं कंडीशन डिफाइन कर लूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे वेंडर 1 की ईमेल आ रही है, उसमें अटैचमेंट है, तो उसका स्पेसिफिक फोल्डर डिफाइन हो, वहाँ जाके सेव हो जाए. या मेरे पास वेंडर 2 की ईमेल आ रही है, उसका एक स्पेसिफिक फोल्डर डिफाइन हो, वहाँ जाके उसकी ईमेल सेव हो जाए. तो वो चीज़ हैंडल करने के लिए हमने इस पे जाना है फर्स्ट पे, और जो कंडीशन डिफाइन होगी वो यहाँ पे हमने करनी है. मैंने कंडीशन के अंदर अपना जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था मैं उसको ऐड कर देता हूँ. ट्रू वाले में मैंने उसको ऐड किया और यहाँ पे मैं जाके कंडीशन को डिफाइन कर दूँ. अच्छा, कंडीशन लग रही है मेरी जब ईमेल ट्रिगर हुई, मैंने उसके बाद कंडीशन ऐड करी है ताकि जो मेरा प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज हो जाए कि वो डायरेक्ट ईमेल को सेव ना करे, वो मेरी कंडीशन को फॉलो करने के बाद मेरी अटैचमेंट को जाके मेरी WordPress में सेव करे. अब फॉर एग्जांपल मैं ये कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्पेसिफिक वेंडर की ईमेल आएगी तो वो जाके अटैचमेंट सेव होगी उसकी. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दिया. ये ऑप्शनल है बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करा के फिर नीचे कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ. मैं वेरिएबल में सेव क्या करा रहा हूँ, मेरा फ्रॉम मतलब जो मेरा सेंडर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने एक कंपोज करके वेरिएबल में सेव करा दी और उसकी बेस पे मैं यहाँ पे जाके कंडीशन लगा रहा हूँ. इसको मैं रीनेम भी कर लेता हूँ. स्टैंडर्ड इसका आउटपुट जो भी होगा वो इक्वल होना चाहिए मेरे वेंडर की ईमेल से. ईमेल ऐड कर दी ताकि हम उसको फॉलो कर लें. आप अपने यूज केस के हिसाब से अपनी जो भी वेंडर है उसकी ईमेल को ऐड कर सकते हैं. हमें यहाँ पे मल्टीपल वेंडर्स को भी ऐड कर सकते हैं एक साथ के. अगर मेरे ये वेंडर्स हो तो मेरी जो अटैचमेंट है वो जाके यहाँ पे सेव हो जाए और मैं उस पर और की कंडीशन लगा दूंगा ताकि और के अंदर वो चेक कर ले कि इधर मेरा ये वेंडर 1 है या इधर मेरा वेंडर 2 है, तो वो कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो जाए. अभी मैं फॉल्स को कुछ भी नहीं लगा रहा, हम सिर्फ ट्रू को चेक करेंगे. ट्रू के ऊपर मेरी अटैचमेंट जाके सेव हो जाए. अभी मैंने कंडीशन लगा दी. अब
जब भी ये ईमेल ट्रिगर होगी वो कंडीशन को चेक करेगा और जाके मेरी फाइल को क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, इसको हमें दफा करना है। अच्छा, हम जब भी कोई फ्लो को बना रहे होते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए हम मैन्युअली उसको टेस्ट करते हैं, और एक दफा जब वो ऑटोमेट आपने एक ट्रिगर चला लिया तो आपके पास ऑप्शन आती है कि आप उसको पुराने जो ट्रिगर था उससे टेस्ट करना चाह रहे हैं या मैन्युअली आपको दोबारा उसको ट्रिगर करना है। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे मैंने ऑटोमेटिकली अभी 1 मिनट या 5-10 मिनट पहले मैंने जो फ्लो चलाया था उसका स्टेटस मेरे पास सक्सीडेड आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ वही जो फ्लो था या मेरा जो प्रोसेस था वही मैं दोबारा रन करना चाह रहा हूँ। मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो अब मुझे टेस्ट करने के लिए दोबारा ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है, मैं उसी जो पुराना मेरा प्रोसेस था मैं उसी को दोबारा चला रहा हूँ। बस कंडीशन ट्रू हुई और दोबारा जाके मेरी जो फाइल थी वो वन ड्राइव में सेव हो गई। इसके ऊपर जब भी आप की ईमेल अराइव हुई तो उसके अंदर हो सकता है मल्टीपल अटैचमेंट्स हो, तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई टू ईच लगाया जिसके अंदर मैंने अटैचमेंट्स को ऐड किया कि मल्टीपल अटैचमेंट हो तो वो लूप चले और लूप के अंदर जितनी भी अटैचमेंट हो वो जाके मेरी वन ड्राइव में सेव हो जाए, और उसका मैंने फाइल नेम और उसका जो फाइल कंटेंट है वो मैंने सेव कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं AI बिल्डर को कि AI बिल्डर के ऊपर वो मुझे क्या आंसर देता है। तो AI बिल्डर क्या करेगा, AI बिल्डर इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको प्रोसेस करके ले आएगा और उसकी फील्ड्स को डिफाइन कर देगा। उसके लिए हमें सिंपली जाना है थोड़ा सा AI बिल्डर मैंने अच्छा, AI बिल्डर के अंदर मेरे पास प्री बिल्ड आप कह सकते हैं प्रोसेसेस बने हुए हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मेरे केस में मैंने प्रोसेस इनवॉइस करना, आप प्रोसेस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या रन अ प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सारी AI बिल्डर की फंक्शनैलिटी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे केस में अभी हम इसको प्रोसेस इनवॉइस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं जाके अपनी इनवॉइस फाइल को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप पेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं कितने पेजेस को इसमें स्कैन करना है और उसको स्कैन करने के बाद उसका जो आउटपुट है या उसका कंटेंट है आपको लाके देना है। तो यहाँ पे आप पेजेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। बाकी हम इसको अंदर इनवॉइस को प्रोसेस करने के लिए हमें इसको गेट फाइल का एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, एक्शन ऐड करना पड़ेगा ताकि जो मेरे ईमेल का कंटेंट है या जो उसकी अटैचमेंट है ये उसको पैच करके लेकर आए और प्रोसेस करे। फाइल
Don't forget file. Get attachment, get and how to select capability. अगर अटैचमेंट करें और उसमें फिर उसके कंटेंट Attachment, HTML plus or something. तो हम इसको गाइड अटैचमेंट लेते हैं। अब करेगा ये कि मेरे पास ईमेल में एक अटैचमेंट थी, वो जाके सेव हो गई फाइल के अंदर। उसके अंदर मल्टीपल चीजें थी, उसमें मेरा फाइल नेम, अटैचमेंट का नेम भी था, उसमें अटैचमेंट के कंटेंट्स भी थे। अब जब आपको कोई चीज प्रोसेस करानी है ना पावर ऑटोमेट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एआई बिल्डर को यूज कर रहा हूँ, तो आपको स्पेसिफिकली उस अटैचमेंट को फैच करके यहाँ पे प्रोसेस कराना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे गेट अटैचमेंट को यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि वो मेरी जो स्पेसिफिक अटैचमेंट है उसको लेकर आए और वो इस एआई बिल्डर के अंदर ऐड करे। तो ये समझ लें आप एक ऐसा प्री रैक है, आपको जब भी एआई बिल्डर या कोई भी अटैचमेंट को आगे पावर ऑटोमेट के अंदर प्रोसेस कराना हो, कोई भी एक्शन के थ्रू, उसके लिए आपको मैंडेटरी फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैसेज आईडी एंड फॉर गेट अटैचमेंट मैसेज आईडी को सर्च कर देंगे, मैसेज आईडी मिल गई मुझे, अटैचमेंट आईडी। ये मेरी आ गई अटैचमेंट आईडी। मैंने सिंपली इसको ऐड किया, ये मेरी फैच करके ले आएगा अटैचमेंट को, और मैं जाके इस ये बिल्डर वाले प्रोसेस इनवॉइस के अंदर इनवॉइस फाइल को ऐड कर दूंगा। गेट अटैचमेंट के अंदर मैंने कंटेंट बाइट्स को ऐड करना है, जिसके अंदर मेरे अटैचमेंट का सारा कंटेंट है। मैंने सिंपली इसको ऐड किया, अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं इसके ऊपर क्या चीजें लेकर आए। So we have another question. We can use HTML to text or something similar to bypass the AI builder. Yes, use हो सकता है to some extent, but there are limitations. Considering if there are a scanned PDF file of scanned images, डॉक्यूमेंट्स की, इनवॉइसेस की, कि आपके कैम स्कैन से अपलोड की हुई है या उसकी वो पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, वहाँ पे आपको चैलेंज आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास इमेजेस हैं, हैंड रिटन फॉर्म्स हैं, एआई बिल्डर को यूज करते हैं, यू कैन पीडीएफ वगैरह और या एक्सेल फाइल में वो आप इजीली कर सकते हो मैनेज। लेकिन ये कि HTML टू टेक्स्ट, यस फॉर द स्ट्रक्चर्ड डाटा, ईमेल बॉडी में है, या ईमेल की जो है वो पार्सिंग वगैरह को यूज करते हुए अगर आप करना चाहें, यस रेजेक्स के साथ भी हो सकता है, बट दैट मेक्स इट बिट कॉम्प्लेक्स ऑन द कोडिंग साइड, और कोडिंग हैवी कर देगा इस पूरे फ्लो को। अभी का तो खैर हम बिल्कुल बेसिक लेवल इनिशियल पे जा रहे हैं, तो बट यस योर क्वेश्चन इज वैलिड टू सम एक्सटेंट। यस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वहाँ पे आपको जो है HTML टू टेक्स्ट जो है वो बाईपास नहीं करके दे सकता एआई बिल्डर को। थैंक यू मुझे भाई। अच्छा, जो मेरा पुराना प्रोसेस था मैं उसी को रीसबमिट कर रहा हूँ, तो जब मैं रीसबमिट करूंगा तो वो उसी ईमेल जो मेरे पास अराइव हुई थी वो उसी प्रोसेस को लेकर चलेगा, और मैंने जो उसमें भी न्यू एडिशन करी है वो मैं ऐड कर देगा। मैं इसको रीसबमिट करता हूँ, तो रीसबमिट में मेरा दोबारा फ्लो चलेगा और जो मैंने चेंजेस करी हैं वो उनको चेक करते हुए इसको प्रोसेस करेगा। जहाँ पे हमने डिफाइन करा था कि गेट अटैचमेंट होनी चाहिए और फिर उस इनवॉइस को प्रोसेस करना चाहिए। चल जब हम देखते हैं हमारे पास प्रोसेस इनवॉइस के अंदर क्या कंटेंट वो रिट्रीव करके लेकर आया है।
आउटपुट पर उसने रिट्रीव कर लिया डेटा को, बट पूरा अनस्ट्रक्चर्ड है, वो स्ट्रक्चर्ड है बेसिकली। तो इसकी कंडीशन नीचे डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको एडिट करते हैं। इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम यहाँ पे, ताकि सब सेम इजीली देख भी सकें इसको, मैं यहाँ पे कंपोज ऐड करता हूँ, ताकि जो उसकी वैल्यू मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको स्टोर करा लूँ यहाँ पे। पहली चीज इनवॉइस के अंदर पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर के उस इनवॉइस इसको मैं रीनेम कर देता हूँ परचेज ऑर्डर, और मैं यहाँ पे एक और कंपोज ऐड कर देता हूँ जो है पीओ की अमाउंट। कर लेते हैं इनवॉइस टोटल, और अब इसको रन करके देखते हैं कि उसके ऊपर मेरा जो भी इनवॉइस प्रोसेस हुई इसका परचेज ऑर्डर नंबर क्या है और इनवॉइस पे टोटल क्या, ताकि इजीली सब देख ही सकें, और इसी की बेस पे हम नीचे कंडीशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रन हो चुका है। अब इजीली हम लोग सब देख सकते हैं परचेज ऑर्डर के ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर जो मेरा परचेज ऑर्डर है नंबर ये है, और जो मेरा इनवॉइस टोटल है $1,000 फॉर एग्जाम्पल, जो कि मेरी अटैचमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ तक सबके लिए इजी है। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो बॉस चैट पे पुट कर दे या माइक अनम्यूट करके कह सकता है। You have a question, sir? अच्छा, इसके ऊपर किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। Sham Abdullah question, can it be integrated with Microsoft desktop server? बिल्कुल कर सकते हैं इसको। इसके लिए आपके पास आपको गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको कस्टम कनेक्टर बना के नए प्रोसेस को डिफाइन करना होगा। तो यस, इट्स डूएबल। तो ये चीजें इसके अंदर हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर जो भी डेटा है आप उसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं पावर ऑटोमेट के साथ कनेक्ट करके। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के पावर ऑटोमेट का गेटवे है स्पेसिफिकली ऑन प्रेम से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और आप ऊपर कनेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि प्री बिल्ड उसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा ऑन प्रेम के लिए, आपको कस्टम बनाना पड़ेगा। तो यस, दिस इज डूएबल। स्टार्ट करते हैं टीम्स एंड आउटलुक अप्रूवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने इनवॉइस को प्रोसेस कर लिया, हमारे पास एआई बिल्डर के थ्रू हमारे पास इनवॉइस का कंटेंट भी आ गया। अब उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी इनवॉइस की वैल्यू अगर $1,000 से ऊपर है या व्हाटएवर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने कंडीशन के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी इनवॉइस की वैल्यू $1,000 से ऊपर है तो उसकी एक स्पेसिफिक अप्रूवल हो जो कि मेरे डायरेक्टर से हो या मेरे सीईओ से हो। तो मुझे वो चीज को डिफाइन करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी उसकी इनवॉइस की वैल्यू मोर देन $1,000 है तो वो उसकी अप्रूवल जाए
मेरे डायरेक्टर के पास और उनकी अप्रूवल के बाद मैं उस इनवॉइस को आगे प्रोसेस करूँ। तो हम इस चीज को ऑटोमेट करेंगे। अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ और मैंने उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन को ऐड करना है, जो कि मेरी कंडीशन, मैंने जब इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कंडीशन ये डिफाइन करनी है कि जो मेरे इनवॉइस का टोटल है, नॉट दिस वन, कॉज इसमें मेरे पास पूरा टेक्स्ट है, इसके अंदर डॉलर भी है और सारी चीजें। मैं चाह रहा हूँ कि सिंपली इनवॉइस की जो अमाउंट या नंबर है, मैं सिर्फ उसको उसके ऊपर कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। टोटल इनवॉइस, इसको भी इसके अंदर ऐड करके देखते हैं सर। ताकि सिंपल हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि इक्वल्स टू 1000 हो, या उसको मैं ग्रेटर देन भी कर सकता हूँ, ग्रेटर और इक्वल टू। तो जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक स्पेसिफिक अप्रूवल हो, मेरे डायरेक्टर से हो, और उसके बाद मैं इस इनवॉइस को प्रोसेस करूँ। उसके लिए हमारे पास अप्रूवल के लिए प्री बिल्ड कनेक्टर्स अवेलेबल है। इसमें हम यूज करेंगे स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल। अप्रूवल की टाइप डिफाइन कर देंगे, एवरीवन मस्ट अप्रूव। टाइटल क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे जिसको मैंने ये ईमेल जिससे मुझे अप्रूवल चाहिए, मैं उसको यहाँ पे असाइन टू में ऐड कर दूंगा। मैं अपने आप को ही ऐड करता हूँ यहाँ पे। मैंने ईमेल ऐड कर दी, और जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास उसकी अप्रूवल आएगी, मैं अप्रूव करूंगा। तो जिसने रिक्वेस्ट करी, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस यूजर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने अप्रूवल देनी है, मैंने अप्रूव कर दी, तो उसके बाद नोटिफिकेशन चले जाएगा कि ये इनवॉइस अप्रूव हो चुकी है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर एक सेपरेट आपका एप्लीकेशन अवेलेबल है जो अप्रूवल्स के नाम से, और आपके पास आउटलुक के ऊपर भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो आता है। हम इसको टेस्ट करते हैं।
तो कोई एक आध मिनट लेता है बेस्ड ऑन इंटरनेट और ये प्रोसेस करके आपको आपके प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। अच्छा, मेरे पास अप्रूवल आ गई है, मैं अपनी स्क्रीन स्विच करके आपको दिखाता हूँ हाउ इट लुक। तो फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट करी थी, वो थी नीड्स अप्रूवल ऑन इनवॉइस परचेज ऑर्डर नंबर, जो हमने पहले लिखा था, उसकी टोटल अमाउंट $1000, और मैंने ही मुझसे रिक्वेस्ट करी है। आपके केस में आपका जो भी डायरेक्टर होगा उसकी ईमेल होगी, मैं इसमें कमेंट ऐड कर सकता हूँ और मैं इसको चेक अप्रूव कर सकता हूँ। ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता हूँ, तो जिसने रिक्वेस्ट करी उसको नोटिफाई हो जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो थी वो कैंसिल हो गई है फॉर एनी रीजन। आप वो कमेंट डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे अप्रूवल्स होंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक एप्लीकेशन है अप्रूवल्स के नाम से, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसके अंदर आपके जितने भी अप्रूवल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उनकी पूरी डिटेल्स कि वो कब अप्रूव हुई है, कब क्रिएट हुई है, किसने अप्रूव करी है, किसको सेंड हुई है, और अगर किसी को फॉरवर्ड हुई है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये भी एक कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल है जहाँ पे आपकी सारी अप्रूवल एंड डिलीवरी होती है। और अपने प्रोसेस को भी देखते हैं वो कंप्लीट हो गया कि नहीं। दिस इज इट, यहाँ पे अप्रूव हो गया है और आपको एक ईमेल भी आ जाती है। जैसे मैंने अपना रिक्वेस्ट करी तो एज अ रिक्वेस्टर मुझे एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। तो दिस इज इट। इसके ऊपर किसी और क्वेश्चन है? How we can identify if the process should be in a loop or if should be out of the loop? It's very simple. By its name, अगर कोई एक प्रोसेस आपको रिपीटेटिवली एक ही फाइल पे या एक ही कंटेंट के ऊपर रिपीट करना है बार बार, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मल्टीपल फाइल्स कमिंग इन, आपने एक लूप ऐड किया है कि जी फॉर एग्जाम्पल वन ड्राइव का एक फोल्डर है, उसके अंदर 5 फाइल्स हैं, वन बाय वन ब्रिंग ऑल दोस फाइल इनटू द फ्लो, उसको रीड करो और उसके अंदर से इनवॉइसेस का डाटा जो है वो एक्सेल की एक फाइल आपने डेजिग्नेट कर दी, उसके अंदर रोज के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर दो। सो फॉर वन लूप, क्योंकि आपको मल्टीपल फाइल्स वन बाय वन लेके आनी है, सो फर्स्ट लूप की जो इटरेशन होगी दैट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फाइल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और बाय द टाइम वो लास्ट फाइल पे पहुंचेगा अभी 5 फाइल्स जो है वो प्रोसेस हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लूप जो आपका आएगा उसमें आपके पास क्या होगा कि वो उस फाइल में से जो कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके और वो वन ड्राइव उसमें एक्सेल की फाइल के अंदर जो है वो ऐड कर रहा होगा। सो अब कोई भी चीज जो आपकी रिपीटेटिव चलनी है, सिमिलर है और रिपीटेटिव है ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल यू कैन से रिसोर्सेज, एक ही बेसिकली आप मतलब एक जो रूल है आपका वो रूल अप्लाई होना ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल थिंग, और उससे आपने कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है या उससे आपने कोई रिजल्ट ड्राइव करना है, दैट शुड बी इन द लूप। अगर कोई चीज आपकी जो है यू नीड टू से लाइक यार ये वन टाइम चीज है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है या फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिगर है उसको आप लूप में डाल देंगे तो वो उसको आप टाइम कर दें कुछ भी कर दें वो उसको लूप में चलाते ही रहेगा। तो इस तरह की कोई भी चीज जो आपने रिपीट करनी है किसी स्टेप के ऊपर कि यार इधर अगर फॉर एग्जांपल 5 या 10 दफा इस प्रोसेस को रिपीट करना है, लूप इज द ऑप्शन फॉर दैट। अच्छा, ये सिर्फ ट्रिगर के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमने एक्शन के अंदर लूप कब लगाना है, तो उसका एक सिंपल सा है, अगर आपके पास गेट आइटम है इट्स मीन एक एंटिटी है तो उसमें लूप की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास आप मल्टीपल आइटम्स गेट कर रहे हैं तो उसके लिए एक्शन के ऊपर ही डिपेंड होगा गेट आइटम्स।
तो वो आपको एक चीज ट्रिगर कर देगी यार ये आइटम्स हैं, तो इट्स मीन कि ये लूप में ही जाएंगे। और आप जब भी एक्शन के अंदर उसकी फील्ड को यूटिलाइज करेंगे ना, ऑटोमेटिकली पावर ऑटोमेट उसको लूप में ले जाएगा। हाँ, उसके साथ जो है वो लूप ऑलरेडी वो असाइन कर देगा, और जब आप वो एक्शन ब्लॉक ऐड करेंगे उसके साथ लूप ऑलरेडी लगा हुआ होगा। उसमें दो टाइप के हैं आपके कंडीशनल लूप्स, कुछ आपके डू अनटिल पे चल रहे होते हैं, कुछ आपके इफ एल्स पे चल रहे होते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि क्या एक्शन आप जो है वो ऐड कर रहे हो और उसकी बेस पे कौन सा उसका लूप जो है उसके साथ आएगा। आई होप वी आंसर्ड दिस। Any other questions, please? Go ahead. ऑल्सो आप लोग कोई यूज केसेस हैं तो आप लोग वो बता सकते हैं, तो आई हेल्प यू आउट कि उसको कैसे प्रोसेस करना है। Meanwhile, all other attendees, please scan this QR code, bring out your mobiles, and please do share your feedback. Any request or need you feel that we need, if you guys need more like this sessions coming in more frequently, प्लीज डू राइट। सो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर आगे का हम लोगों का कोर्स जो है वो डिफाइन हो रहा होगा, तो प्लीज फील फ्री। I use Flow to create them with Copilot and Claude, but major issue is with customization according to my job, and usually get stuck with dynamic expression to get desired outcome. Okay. Dynamic expression at times क्योंकि multiple यूज कर रहे हैं AIs, Copilot भी यूज कर रहे हैं, Claude भी यूज कर रहे हैं। अब उसमें customization जो आपकी है to get a certain job done, उसमें अगर आपका dynamic expression है, dynamic expression आपका कभी भी जो आएगा वो तब आएगा जब उसका object create हुआ होगा। If you don't have an object, for example आपने invoice read की और उस इनवॉइस से आपने जो डाटा फेच किया उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो डायनामिक एक्सप्रेशन की लिस्ट में शो ही नहीं होगा। बट फॉर दैट आप उसको हमारे फंक्शंस ऐड करने के एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेशन के थ्रू जो एक्सप्रेशन की फील्ड है, नॉट द डायनामिक एक्सप्रेशन, आप सिर्फ एक्सप्रेशन की फील्ड में आपको टेक्स्ट कॉलम मिलता है, उसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हुए उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और उसको वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल एफएक्स फार्मूलाज होते हैं, एफएक्स फार्मूलाज हैं आपके वहां पे, उनको यूज करते हुए आप यू कैन गेट थिंग्स डन। तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीजें जो आपको डायनामिक एक्सप्रेशन में नहीं मिल रही, वन वे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें सेपरेटली, अगर उसके जो है नॉर्मल फंक्शन से नहीं हुआ खुद क्रिएट कर लें। पॉइंट वन। सेकेंड इज कि आप उसके एफएक्स फंक्शन के ऊपर चले जाएं। एफएक्स फंक्शन इवन आप चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लॉड किसी को भी बताएंगे कि ये सिनेरियो मुझे ये वैल्यूज रिक्वायर्ड है, वो आपको उसका एक्सप्रेशन बना के दे देगा इफ यू आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन डेवलपिंग सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। Any other questions or suggestion or feedback? Or even if while working on these kind of automation projects or internal requirements, whenever you guys need, you can always reach out to us at JBS. We have strong expertise on this. Thank you, Rizwan. Thank you.